Don't let people put labels on you. आप लोगों को अपनी कीमत तय करने ना दें। They didn't create you. उन्होंने आपको नहीं बनाया, Satan didn't create you. शैतान ने आपको नहीं बनाया। Don't take your identity from him. अपनी पहचान उनसे मत लें। Hear what your heavenly Father says about you. वो सुने जो आपका स्वर्गीय पिता आपके बारे में कहता है। Amen. आमेन। And when I started to grow in the Word of God, I found no, I was not a loser, but I was chosen. I was appointed. I was anointed. I was more than a conqueror in Jesus' name. और जब मैं वचन में पढ़ने लगा, वचन में बढ़ने लगा, मैं जानने लगा कि मैं हारा हुआ नहीं, मैं जयवंत हूँ, मैं चुना गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुनकर निकाला है इस जीवन में। Amen. Only the Creator can decide the value. केवल रचना करने वाला ही कीमत का सही भाव लगा सकता है। Samsung cannot tell you how much Apple will sell this phone for. सैमसंग वाले आपको नहीं बता सकते कि एप्पल को कितने का बेचना चाहिए अपना फोन। Amen. You know, we are living in these times wherein so many people are going through attacks in their mind, they are oppressed, they are depressed. हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ बहुत से लोग के मानसिकता पर हमला है और वो तनाव में और डर में जी रहे हैं। And the enemy has isolated so many people and they believe nobody understands what they are going through. और दुश्मन ने बहुत से लोगों को अकेला कोने में घेर लिया है और उन लोगों को लगता है कि कोई नहीं समझता कि वो किस बात से गुजर रहे हैं। He has convinced them that they are alone in this fight. उसने उन लोगों को इस बात के लिए राजी करवा लिया है कि वो अकेले हैं इस लड़ाई में। And if you are here and you have been battling with dark thoughts, with the thoughts of depression, with the thoughts of hopelessness, I want to tell you that you are not alone. और अगर आप यहाँ पर हैं और आप ऐसे विचारों से लड़ते आए हैं जो अंधेरे से भरे हैं, जो निराशा से भरे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो। You are not alone. God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। And because God is with you, you are coming out of this victorious. और क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आप इससे बाहर निकल रहे हैं जय पाकर। Amen. It doesn't matter what labels people have given you. फर्क नहीं पड़ता लोगों ने क्या क्या नाम दिए आपको उसके बदले। That's what the enemy does, right? दुश्मन यही करता है। That's the way he plays with our mind. यही तरीका है जिससे वो हमारी मानसिकता से You know खेलता what he है। does? पता है वो क्या करता The है? Apostle Paul says that we are not unaware of the wiles of devil. पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हम अनजान नहीं है दुश्मन के जो हथियार है उससे। What he does is the same thing he did in the garden. वो वही करता है जो उसने अदन की बगीचे में किया था। He will come near to you वो आपके करीब आएगा and whisper. और हल्के से But धीमे से when he बोलेगा। whispers, लेकिन जब वो बोलता है धीमे he से, whispers in the first person वो पहले व्यक्ति यानी कि मैं करके बोलता है and speaks, और बोलता है I'm not good enough. मैं किसी लायक नहीं हूँ, Nothing good will come out of my life. मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, I should end my life. मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए, Nobody loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता। That's his tactics. यही उसका तरीका है। But I want to tell you that the antidote to darkness is light. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अंधेरे का जो समाधान है वो ज्योति है, रोशनी है। Amen. And there is no struggle between light and darkness. और अंधेरे और ज्योति के बीच में कोई लड़ाई नहीं हो सकती। The moment, the instant light will manifest in your life, darkness will have no other option but it has to flee. जैसे ही प्रकाश आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा, अंधेरे के पास कोई रास्ता नहीं है निकलने के अलावा। Amen. So if you are here this morning, all you need is the light from the Word of God. अगर आज सुबह आप यहाँ हैं, आपको केवल वचन का प्रकाश चाहिए। The Bible says the entrance of His Word produces light. और बाइबल कहती है उसके वचन का प्रवेश प्रकाश लेकर के आता है। Amen. So you have not come here to hear a religious message, to hear a nice motivational teaching. You have come here to receive the word of life. And as you receive it, you not only receive a simple sermon, you receive light in your spirit. तो आप जब यहाँ आए हैं तो एक धार्मिक शिक्षा सुनने के लिए नहीं, लेकिन वो जीवित वचन सुनने के लिए आए हैं, जो आप ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में प्रकाश प्रवेश करेगा। Amen. The enemy would have told you that you are a loser, but I want to tell you, you're not a loser, you are a conqueror. और दुश्मन ने आपसे कहा होगा कि तू हारा हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आप हारे हुए नहीं हैं, आप जय पाए हुए हैं। Amen. All you need is the Lord by your side. आपको केवल इतना ही चाहिए कि प्रभु आपके साथ हो। Because He does not look at you like the world looks at you,
like the enemy looks at you. क्योंकि वो आपको वैसा नहीं देखता जैसे दुनिया देखती है या जैसे दुश्मन देखता है। The Bible talks about this man called Gideon, बाइबल बात करती है गिदोन नाम के एक व्यक्ति, the least among the least tribe, वो अपने सारे गोत्रों में सबसे छोटे गोत्र का the था। one who was mocked, the one who was rejected, the one who had no reputation, वो जिसकी कोई हैसियत ही नहीं थी समाज में, जिसका सब मजाक बनाया करते थे, a super coward. एक बहुत बड़ा डरपोक था वो। That's how the world saw him. ऐसे दुनिया देखती थी उसको। But you know what God saw in him? लेकिन पता है परमेश्वर क्या देखता था उसमें? When the world saw a coward, God saw a warrior. जब दुनिया एक डरपोक देखती थी उसमें, परमेश्वर उसमें एक शूरवीर योद्धा देख रहा था। Amen. And when he has an encounter with God, and when God speaks to him, God says, "Oh, you mighty man of valor." और जब परमेश्वर का साक्षात्कार होता है गिदोन से, परमेश्वर से बात करता है और कहता है, हे शूरवीर योद्धा गिदोन। I'm sure Gideon must be thinking, who, me? और शायद वो जब उससे परमेश्वर की आवाज सुनिएगी तो वो हैरान होगा, क्या मुझसे बात कर रहे हो? Are you talking to me, God? क्या परमेश्वर आप मुझसे बात कर रहे हो? Yes, Gideon, I'm talking to you. हाँ गिदोन, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। I think you're mistaken, God. परमेश्वर से आपको कोई गलती लग गई। I'm no warrior. मैं कोई योद्धा नहीं। Yes, you are a warrior. हाँ तू योद्धा है, Because I am able to see what you are not able to see in you. क्योंकि मैं तुझ में वो देख सकता हूँ जो तू अपने आप में नहीं देखता। Amen. Each one of you here is a masterpiece. आप में से हर कोई जो यहाँ मौजूद है परमेश्वर के हाथ की एक अद्भुत रचना है। Why? Because you have some fancy titles before your name? No. क्यों? क्योंकि आपके नाम के आगे कोई अच्छा टाइटल है? Because नहीं। of your amazing hairstyle? No. आपके बढ़िया बाल है वैसे नहीं। No. You are a masterpiece because you are created in the image and likeness of your heavenly Father. आप एक अद्भुत रचना इसीलिए है क्योंकि अपने परमेश्वर पिता की छवि, उसके स्वरूप में आप बनाए गए हैं। Amen. You are God's masterpiece. आप परमेश्वर के एक अद्भुत रचना है। And when God sees you, और जब He परमेश्वर sees आपको that देखता है, value that He had put in you. जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो उस कीमत को देखता है जो उसने आपको बनाते समय आप में डाली। Amen. So don't allow the enemy दुश्मन को मौका मत दो deceive you. कि वो आपको धोखा दे सके। Maybe you're thinking, what does this guy know? आप सोच रहे हो इस व्यक्ति को क्या पता, He has to preach a nice message, so. इसको तो एक अच्छा संदेश सुनाना है आके। No, I know what it means to be depressed. I know what it means to be suicidal because I was that person when I was 19 years old. नहीं, मैं जानता हूँ तनाव में होने का क्या अर्थ है और आत्महत्या करने के विचारों से लड़ने का क्या अर्थ है, क्योंकि मैं वही था जब मैं 19 वर्ष का था। My dad is here. मेरे पिता यहाँ हैं। He used to take me to psychiatrist, वो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाया करते थे। contemplating suicide every day मैं हर रोज मरने की तरीके सोचता था, because the enemy used to tell me that your life is not worth living. क्योंकि दुश्मन मुझसे रोज कहता था कि तेरी जिंदगी जीने लायक ही नहीं है, Nobody wants you. कोई तुझे नहीं चाहता, So why don't you end your life? जिंदगी खत्म ही कर ले इससे अच्छा। And every day, I was very certain that I'm not going to live long. और हर दिन मुझे पक्का पता था कि मैं ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं जीऊंगा, हर दिन ये विचार आते थे। However, लेकिन my Creator had a different story for me. मेरे रचनाकार ने एक अलग कहानी लिखी थी मेरे लिए। I don't know where you are in your life right now, but I want to tell you this is not the end of your story. मैं नहीं जानता अपनी जिंदगी की कहानी में आप कहां पर हैं, पर मैं इतना जानता हूं कि ये आपकी कहानी का अंत नहीं है। One hard chapter in your story doesn't mean that that's how your story will be. आपकी जिंदगी की किताब का एक अध्याय बहुत कठिन निकला, इसका ये अर्थ नहीं कि पूरी किताब वैसी होगी। I am here to tell you that your story is going to be glorious in the name of Jesus. मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि आपकी कहानी महिमा से भरी होगी यीशु के नाम में। One encounter I had with Jesus and He transformed my life. एक साक्षात्कार हुआ मेरे यीशु के साथ और उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। Not only I am alive, इतना ही नहीं कि मैं आज जिंदा हूं, but I started to thrive. लेकिन मैं बढ़ने लगा, I फलने started फूलने to लगा। flourish. मैं हर क्षेत्र में फलने फूलने लगा। I had no hope, and today we are bringing hope to so many around the world. मेरे जीवन में कोई आशा नहीं थी, लेकिन आज दुनिया भर के कई कोनों में हम लोगों के जीवन में आशा लेकर आए। And that's my Jesus. और ये मेरा यीशु है, Because He is not a religious God, He is the living God who transforms lives. क्योंकि वो किसी धर्म का ईश्वर नहीं जो कहानियों में होता है, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है जो जिंदगियों को बदलता है। Amen. That's why I
as long as I live. You know, people say, you were born in a Hindu family. Why do you proclaim that Jesus is God? Because I proclaim the truth. Because He transformed my life. And as long as I live, as long as I have breath in me, I'm going to proclaim that there is a name that sets the captives free. There is a name who heals the sick. There is a name above every name. And that name is the name of Jesus. और लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू परिवार में पले बड़े हो, तो फिर क्यों इस यीशु के बारे में बताते हो? क्योंकि उसने जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मैं जब तक जिंदा हूं वो नाम यीशु का नाम, जो बीमारों को चंगा करता है, जो बंधन में पड़ों को आजाद करता है, उस नाम की मैं महिमा करता रहूंगा. Amen.